So students, today we have to start our lecture with the from the states of matter. That is unit 1.3 of chapter states of matter, right? Matter in our surrounding. So let's start. States of matter, we know very well that broadly matter can be classified into three states: solid, liquid, and gas. Although we have two more, Bose-Einstein condensate and plasma. We will have slight introduction about those at the end of the lecture. So observe different type of things. You people know what is solid, what is liquid, what is gas. Okay, just what I have to tell you is the molecular basic is the physical characteristic of these things. Okay, is there any sort of comparison? Suppose we are studying solids, liquid, and gases. So in case of solids, what will happen, beta? Particles are too closely packed. Particles are particles are too closely packed, right? When they are too closely packed, what will happen in case of liquids? Particles are present at distance, at some distance. The intermolecular distance in case of solids is minimum. Intermolecular distance in case of liquids is more than solids but less than gases. And intermolecular distance in case of gases is maximum. Understood? गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस थोड़ा कम है, गैस से कम बट सॉलिड से ज़्यादा, और जो सॉलिड है वहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है. अंडरस्टैंडिंग दिस? This was about intermolecular distance. Now next, what is about intermolecular force of attraction? In molecules के बीच में force of attraction किस में ज़्यादा लग रहा है और किस में कम? So in case of solids, force of attraction सबसे ज़्यादा है. In case of liquids, force of attraction थोड़ा कम है. और gases के केस में intermolecular force of attraction मतलब दो molecules के बीच में लगने वाला force of attraction is minimum. All right. Third property was what properties of matter we have studied? They are having motion. Okay, so particular motion की बात कर लेते हैं. गैसेस के केस में मॉलिक्यूल्स क्योंकि इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो वो बहुत ज्यादा मोशन करने के लिए फ्री हैं. दे आर फ्री टू डू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मोशन. ओके, मींस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस पार्टिकल इज मैक्सिमम, while liquids as compared to gas have a lower motion. Okay, lower kinetic energy. And in case of solids, only vibrational motion is taking place, right? Just they are oscillating around their mean position. They are just oscillating around their mean position. Okay, that's why sometimes solids can be considered as rigid, while liquid and gases are considered as fluids. What is a fluid? Fluid is anything which flows. Understanding? Yeah. Can matter change in its state? Yeah, definitely matter can change its state. Okay. Solid can be converted into liquid, liquid can be converted into gas, or solid can directly be converted into gas, or gas can directly be converted into solid in some cases. So let's see. First of all, solid to liquid, liquid to gas, we will study with the help of this diagram. Okay.
सॉलिड स्टेट का कोई सब्सटेंस है, आप उसको हीट करिए, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, फर्दर आप हीट करिए, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, ओके। और आपके पास कोई गैसियस सब्सटेंस है, आप उसको कूल कर दीजिए, यू विल गेट लिक्विड, उसको कूल कर दीजिए, फर्दर यू विल गेट सॉलिड। द बेस्ट एग्जांपल इज वाटर। आप आइस को लेते हैं, बाहर रख दीजिए, वो एटमॉस्फेयर से हीट लेता है और कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड वाटर में। आप उसको हीट करते हैं तो वो वेपराइज करने लगता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, गैसियस स्टेट में जाने लगता है, ओके फाइन। जब बारिश होती है तो वही रेन वाटर वेपर्स कंडेंस हो रही होती हैं, कूल हो रही होती हैं और लिक्विड फॉर्म में रेन हो रही होती है, राइट। आप पानी को उठा करके फ्रीजर में रख दीजिए, या फिर कई बार ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है तो वहां पर आपका लिक्विड ऑटोमेटिकली विल गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, दैट इज आइस। सो स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। बात समझ में आ रही है? सिर्फ इफेक्ट किसका है? टेम्परेचर का है, हीट का है। सो टेम्परेचर क्या होता है? एक्चुअली टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी कितना हॉट या कोई बॉडी कितना कोल्ड है, ये हम पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। क्लियर? सो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर होता है, इन जनरल प्योर सब्सटेंसेस का ये टेम्परेचर फिक्स है। फॉर एग्जांपल वाटर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में 0 डिग्री सेल्सियस, यानी आइस से वाटर वेपर, लिक्विड वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर बनता है। सो दिस 0 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट, ओके। अगर आप लिक्विड स्टेट से वेपर बना रहे हैं, गैसियस स्टेट में जा रहे हैं, तो वाटर तो एक्चुअल में वेपराइजेशन भी करता है। यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन द वेपराइजेशन एंड इवेपरेशन। वेपराइजेशन एंड इवेपरेशन, आप लोगों को लगता होगा दोनों में लिक्विड से गैस बन रहे हैं, राइट। बट जब आपके घर में आप कपड़े सुखाते हो, राइट, तो क्या आप कपड़ों को बर्नर के ऊपर रखते हो या फिर गैस के ऊपर रखते हो, बर्निंग स्प्लिंटर के ऊपर रखते हो? दे ड्राई देमसेल्फ। आपके फ्लोर में अगर पोछा लगाया जाता है, राइट, स्वीपिंग की जाती है, तो उसके बाद क्या आग जला करके फ्लोर सुखाई जाती है? नहीं, वो वाटर अपने आप इवेपरेट कर जाता है। सो जब बॉइलिंग टेम्परेचर के नीचे लिक्विड से वेपर कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम इवेपरेशन, ओके। और अगर बॉइलिंग टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो रहा है तो बॉइलिंग टेम्परेचर पे ये प्रोसेस बहुत फास्ट होगा और उस कंडीशन में हम बोलेंगे वेपराइजेशन। बात क्लियर हो रही है? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इवेपरेशन सिर्फ सरफेस पे होता है, सिर्फ सरफेस के वाटर का होगा, जबकि वेपराइजेशन अगर आपने कंटेनर में वाटर ले रखा है तो यहाँ का वाटर प्लस यहाँ का वाटर दोनों ही इवेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज नाउ द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस विच इज देयर बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है बेटा? श्योर सभी को? गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो इफ दे हैव एनी डाउट दे कैन ask in the comment section or they can ask through call or message, okay fine। इन द वेरी सिमिलर वे जब हम इसे कूल करते हैं, अभी हमने हीट किया, सो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड I request all the offline as well as online students to please pay attention in the class only, okay, because ये ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है और बहुत कॉमन मिस्टेक्स भी करते हैं लोग इसमें, ठीक है। सो गैसियस स्टेट से जब आप कूल करके लिक्विड स्टेट में ला रहे हैं, देन द प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। अभी मैं एक डायग्राम से हेल्प से आपको दिखाऊंगा। एंड लिक्विड स्टेट से जब आप सॉलिड बना रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, और उनको हम कंडेंसेशन पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट उन टेम्परेचर्स को बोल सकते हैं, ठीक है। All right, now students, let's see okay, सॉलिड से लिक्विड बनने का प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन, फ्यूजन और मेल्टिंग, मेल्टिंग। ऑल राइट, लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, और वी कैन से फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, ओके।
freezing. In the very similar way, liquid to gas is called vaporization, and gas to liquid is called condensation. Now, there are some substances, not each and every substance. Normally क्या होता है, आप किसी सॉलिड को हीट करिए लिक्विड हो जाएगा, और हीट करिए वेपर हो जाएगा, किसी वेपर को कूल करिए लिक्विड हो जाएगा, और कूल करिए सॉलिड हो जाएगा, राइट. बट इन सम केसेस वी सी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्जन हो रहे हैं, एंड इन दैट कंडीशन the substances are called sublimable substances and the process is called sublimation. All right, see, solid to gas sublimation, gas to solid sublimation. Okay, can you name some substances which go for sublimation? Yes, the examples are camphor, another example is naphthalene balls in your school toilets. What is school toilets? Anywhere in the toilets you must have seen these. Okay, naphthalene balls means balls are not evaporate, means sublimable substance. Actually the sublimable substance is naphthalene. Okay, in the very similar way we are having ammonium chloride. Ammonium chloride, this also undergoes sublimation. I hope the concept is clear now. Okay, दिस वॉज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे थे, हीट कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, तो इन सब में हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज करके स्टेट चेंज कर रहे हैं. ओके बेटा, हम स्टेट प्रेशर चेंज करके भी चेंज कर सकते हैं, राइट, बाय चेंजिंग जस्ट प्रेशर. ओके, आप प्रेशर बहुत कम है, सपोज आपने 0 ATM प्रेशर रखा हुआ है. ओके, उस कंडीशन में वाटर बहुत कम टेम्परेचर पे, लोवेस्ट टेम्परेचर पे वेपराइज कर जाएगा. ठीक है, और सपोज आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं पहले. ये आपका अर्थ है और अर्थ का कोर है. ज्योग्राफी में यू पीपल मस्ट हैव स्टडीड दैट द कोर टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 6,000 डिग्री सेल्सियस. लेट इट बी 5,000 डिग्री सेल्सियस, राइट. इट इज अ ह्यूज टेम्परेचर. वहां पर जो अर्थ के कोर में हमारे आयरन, मोलाइब्डेनम एटसेट्रा हैवी सब्सटेंसेस अवेलेबल है, वो अगर सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे ला करके आप 5,000 डिग्री सेल्सियस पे उनको हीट कर दीजिए तो वेपर बन जाएंगे, राइट. बट क्योंकि वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो पार्टिकल्स इधर उधर जा नहीं पा रहे हैं और वो उस टेम्परेचर पर भी सॉलिड स्टेट में है. बात समझ में आ रही है? सो प्रेशर कैन ऑल्सो डिटरमाइन योर स्टेट. आप लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि जब आप हाइट्स पर जाते हो, सपोज आप मनाली घूमने गए हैं, आप नैनीताल घूमने गए हैं, आप किसी हिल स्टेशन में गए हैं, तो वहां पर दिस इज योर हिल स्टेशन. ओके, अब आप इस जगह पर वाटर को बॉईल कर रहे हैं. सो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है क्योंकि आप हाइट पर चले गए, एयर कॉलम डिक्रीज कर गया है. So because of the decrease in the atmospheric pressure, you will see that boiling point of water decreases. Water will start boiling even at lower temperatures. Okay, and the same thing will happen with other substances as well. Got it? यानी वहां पर वेपराइज होना आसान है. बात समझ में आ रही है? All right. So प्रेशर का सीधा फंडा पार्टिकल्स से है. Let me show you with the help of diagram.
ऑलराइट, सम पार्टिकल्स आर देयर, लेट दिस बी स्टेज 1। उसके बाद हमने एक पिस्टन लगाया, पिस्टन समझते हैं आप लोग, जिससे हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके ऊपर कुछ वेट्स रख दिए हमने। सो व्हाट विल हैपन, ये कुछ नीचे आ गया है। अभी मान लेते हैं हमने सिर्फ एक वेट रखा है। सो यही पार्टिकल्स जो अभी पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अब वो सिर्फ बचे हुए वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे और पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा पास आ जाएंगे। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, हमने और वेट्स बढ़ा दिए। सो ये सारे के सारे उसने वॉल्यूम और कम कर दिया और पार्टिकल्स बिल्कुल कम वॉल्यूम में काफ़ी क्लोज इकट्ठे हो गए हैं, राइट। सो ये आपका गैसियस स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट का कंडीशन है मोर और लेस, और ये अपने आप सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया है, जस्ट बाई अप्लाइंग प्रेशर वी कैन चेंज द स्टेट। ओके, फाइन। आइस स्केटिंग की है किसी ने? जब आप लोग हिल स्टेशंस में जाते हो और कई बार वहाँ पर स्नोफॉल हुआ होता है, तो आइस स्केटिंग अपने आप में एक बड़ा जो है कह सकते हैं एडवेंचरस एक्टिविटी माना जाता है। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल और मोस्ट ऑफ द टाइम यंगस्टर्स लाइक इट, राइट। तो उस समय आप क्या करते हैं, आपने काफ़ी बड़े बड़े प्लैंक्स अपने पैर में बांध रखे होते हैं और उन प्लैंक्स का प्रेशर आप जब खड़े होते हो, सपोज दिस इज यू, ओके, ये आपके पैर हैं जो उन प्लैंक्स के ऊपर खड़े हैं, और दिस इज आइस। ये पूरी सरफेस में आइस डिस्ट्रीब्यूटेड है। वाइट आप बैकग्राउंड पूरा आइस मान लीजिए। ये जो ब्लू मैंने बनाया है, जहां पर आप खड़े हैं वहां पर प्रेशर ज्यादा लगने की वजह से क्या हो रहा है, वो आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है और आप वहां पर आसानी से मूव कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे ही आप आगे जाओगे, या कई बार जो हाई स्पीड स्केटिंग आपने देखी होगी, तो वहां पर पीछे जो वाटर ड्रॉपलेट्स उछलते हैं वो फिर से कंडेंस होकर के स्नो के फॉर्म में गिरते रहते हैं। आ रही बात समझ में? बट उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जहां पर आपका प्लैंक है, वहां पर आइस मेल्ट कर चुकी होती है और आप वाटर की तरीके स्मूथली उसमें मूव कर पाते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ प्रेशर। कुछ लोगों के ब्रेन में आ रहा होगा, सर आइस तो सॉलिड स्टेट है, तो जब हम उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं तो वो लिक्विड में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? ओके, बिकॉज ऑफ द एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। आप लोगों को पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर में एनामोलस एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, जब हम चीजें हीट करते हैं तो चीजें फैलती हैं। किसी भी चीज को आप हीट करिए वो एक्सपैंड करेगा, राइट। बट वाटर के केस में आप 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर को हीट करिए वो एक्सपैंड करेगा। जब 0 से 4 में आप हीट करते हैं, राइट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। ओके, आ रही है बात समझ में? और 4 से 0 में जब आप उसको कूल कर रहे होते हैं, जनरली आप किसी चीज को कूल करिए वो कंडेंस करेगी, पार्टिकल्स पास आएंगे। बट 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो क्या होता है कि पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, राइट? बाकी जगह पर तो आंसर सर आप काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे देते हैं, यहाँ पर रीजन क्या है? तो यहाँ पर भी रीजन है, बट वो मैं आपको क्लास 11th में बताऊंगा, इन द नेम ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एक टाइप का बॉन्ड होता है, स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड होता है जो फॉर्म होने लगता है, तो आइस के मॉलिक्यूल्स को एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे देता है वो, और वो पर्टिकुलर डिस्टेंस में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, अंदर वैकेंट जगह बन जाती है। आ रही है बात समझ में? नेम आप लोग जान लीजिए, दिस इज मोर देन इनफ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है,
इवेपोरेशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अगर किसी लिक्विड से वेपर्स बन रही हैं बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर, ओके, बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं है तो। अच्छा, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, राइट। मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, वो ग्लास में रखा हुआ है, हो सकता है वो 6 महीने 5 महीने में पूरा पूरा इवेपोरेट कर पाए, ओके। बट अगर मैंने उसको पूरी फ्लोर में फैला दिया तो वो 10 से 5 मिनट में इवेपोरेट कर जाएगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि जब मैंने उसको फैला दिया तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, और इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस फिनोमेना है। अगर मेरे पास कंटेनर है, इसमें डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ऑलराइट, इन दैट कंडीशन जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है ये इवेपोरेट करेंगे, ये इवेपोरेट करेंगे, ओके, मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगा, विंड से एनर्जी मिल जाता है, एयर के पार्टिकल से एनर्जी मिल जाता है, या फिर कई बार खुद हायर एनर्जी का मॉलिक्यूल वहां से स्केप कर जाता है, राइट। बट यहां का मॉलिक्यूल नहीं बाहर जाएगा, अंडरस्टैंडिंग? दिस इज इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, और सरफेस फिनोमेना है तो इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। अगर यहीं पर वेपराइजेशन हो रहा होता और ये पार्टिकल्स हैं, तो आप समझिए सरफेस का पार्टिकल भी वेपराइज करेगा और इनर वॉल्यूम का पार्टिकल भी वेपराइज करेगा, राइट। इसीलिए आप जब चाय उबलने लगता है, चाय के भगोने में आप पानी, चाय बनाने के लिए, कभी चाय बनाया आप लोगों ने? चाय बनाने के लिए आप कभी ट्राई करते होगे तो आप जो है वाटर लेते हो, हीट करते हो, तो हीट होने के बाद आपको नीचे से बबल्स दिखने लगते हैं, क्योंकि वहां पर बॉटम से हीटिंग हो रही है, बॉटम के पार्टिकल पहले गैस बन रहे हैं, ओके। सो वो बबल के फॉर्म में ऊपर आते हैं, अंडरस्टैंडिंग? सो वेपराइजेशन इज अ होल बॉडी फिनोमेना, जबकि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। इवेपोरेशन किन चीजों के ऊपर, मैंने बताया इवेपोरेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ओके, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। और इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझते हैं आप लोग? अगर मैं बोलता हूं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो इसका मतलब होता है A इंक्रीज करने पर B भी इंक्रीज करेगा, ओके। सो इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर हम बढ़ा दें, इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। इवेपोरेशन की जगह पर मैं रेट ऑफ इवेपोरेशन कर दूं तो ज़्यादा बेटर है। एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, आप सरफेस एरिया जितना बढ़ा दीजिए इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड वेलोसिटी, अगर तेज़ हवा चल रही है तो आपका इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स? इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा। इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट हालांकि आपकी बुक्स में नहीं एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी की बात कर लेते हैं। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कपड़े सुखाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जबकि टेम्परेचर 40-45 डिग्री सेल्सियस है, हवा भी तेज़ चल रही है, बट वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में खुद से वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा है, सो इट विल बी डिफिकल्ट। अंडरस्टूड दिस मच? Factors affecting evaporation. How does evaporation cause cooling? Yeah, most of the time students you must have seen that evaporation causes cooling, okay. किसी बहुत गर्मी का दिन है और शाम में आप किसी गार्डन में जाते हो जहाँ पर ग्रास में खूब सारा वाटरिंग किया गया अभी, तो वहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है, या आप किसी बीच में जाते हो या बैंक ऑफ द रिवर पे जाते हो, सो आपको ठंडा एयर महसूस होगा, कूल टेम्परेचर फील होगा। वाई? बिकॉज वहां पर इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन जब भी होता है तो अपनी सराउंडिंग से ही हीट लेता है, इस वजह से अगर किसी सरफेस पे इवेपोरेशन हो रहा है तो वो सरफेस का टेम्परेचर नीचे गिर जाएगा, राइट। एंड इवेपोरेशन रिजल्ट्स इन कूलिंग। व्हाई? क्योंकि जो पार्टिकल इवेपोरेट कर रहे हैं वो टेम्परेचर यानी हीट ले रहे हैं अपनी सराउंडिंग से,
अंडरस्टैंडिंग? आपके हाथ में जब भी सैनिटाइजर आप डालते हो तो आपको ठंडा फील होता है, वाई? क्योंकि इवेपोरेशन ऑफ इथेनॉल पार्टिकल्स जो कि सैनिटाइजर में प्रेजेंट हैं, उनका इवेपोरेशन हो रहा है और वो हीट ले रहे हैं आपकी स्किन से। ओके, तो जब भी किसी बॉडी से हीट ली जाएगी वो आपको ठंडा फील होगा, जब भी किसी बॉडी से हीट दी जाएगी वो आपको गर्म फील होगा। अगर कोई बॉडी आपने टच की, उसका टेम्परेचर आपकी बॉडी से ज्यादा है और आपको वो हीट दे रहा है, तो यू विल फील कि वो गर्म है। और अगर आप किसी ऐसी बॉडी को टच करें जिसका टेम्परेचर आपकी बॉडी से कम है, तो आपको लगेगा कि वो ठंडी बॉडी है और उस समय आप अपनी बॉडी से हीट उसको दे रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग? आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप एक हाथ को डालिए आइसी कोल्ड वाटर में और दूसरे हाथ को डालिए नॉट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, मैं आपको जलाने की प्लानिंग नहीं कर रहा हूं, आप 50-60 डिग्री सेल्सियस का वाटर ले लीजिए, उसमें हाथ डाल दीजिए। उसके बाद आप हाथ निकाल करके नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस के वाटर को टच करिए दोनों हाथों से। एक हाथ से आपको वही वाटर गर्म लगेगा और दूसरे हाथ से वही वाटर ठंडा लगेगा। क्लियर हो रहा है? सो दिस कोल्ड और हॉट फील्स बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट। अगर बॉडी हमारी बॉडी से हीट ट्रांसफर हो रही है तो हमें ठंडा फील होगा, और अगर हमारी बॉडी हीट गेन कर रही है तो हमें गर्म फील होगा। क्लियर? वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? समर्स में हम कॉटन क्लॉथ्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो पहली बात तो एयर के पैसेज को हमारी बॉडी तक अलाउ करते हैं, और जब एयर हमारी बॉडी के अंदर जाएगा मतलब हमारी बॉडी से टच कर रहा होगा तो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन से कूलिंग होगा, राइट? सॉलिड लिक्विड गैस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई थिंक बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा वी विल डिस्कस, वी कैन डिस्कस राइट नाउ। ओके, प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट एक स्पेशल स्टेट ऑफ मैटर है, वी कैन से इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ बहुत ज्यादा एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं जिनका एनर्जी बहुत हाई है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। दीज पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस, ये गैसेस हैं वो भी आयनाइज्ड, मतलब एक गैस पार्टिकल है उसके ऊपर उससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, आयन बन गया। ओके, आयनाइज्ड गैसेस। फ्लोरेसेंट ट्यूब, फ्लोरेसेंट ट्यूब जानते हैं जो आपके CFLs होते थे, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट्स, ठीक है। नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, इनके अंदर कुछ नहीं होता है, प्लाज्मा होता है। आजकल जो रॉड्स आप देख रहे हैं ये आपके LEDs हैं, ओके, लाइट इमिटिंग डायोड्स है। बट इसके पहले जो रॉड आते थे, ग्लास का रॉड लगता था और उसको रन कराने के लिए एक स्टार्टर लगाना पड़ता था, कई बार वो ब्लिंकिंग करके ऑन होते थे, याद है आप लोगों को? ठीक है, जस्ट आज से 2-3 साल पहले। अभी भी आप किसी पुरानी बिल्डिंग में चले जाएं तो मिल जाएगा आपको। क्लियर? तो उन बल्ब्स के अंदर भी प्लाज्मा स्टेट में आयंस होते थे, ठीक है। और सरफेस पे उस बल्ब की उस ट्यूब की सरफेस पे एक पाउडर लगा देते थे। वो पाउडर एक्चुअल में कुछ नहीं, फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है। व्हाट इज दैट? फ्लोरेसेंट मटेरियल दैट कैन बी जिंक सल्फाइड। एक कॉमन फ्लोरेसेंट मटेरियल है ZnS, जिंक सल्फाइड। ओके, फ्लोरेसेंट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनसे कोई चार्ज पार्टिकल अगर टकराएगा तो वहां पर ल्यूमिनेसेंस यानी साइंटाइलेशन यानी लाइट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, चमक प्रोड्यूस होगा। सो इस तरीके से इसका यूज करते थे हम। प्लाज्मा क्या है? हाईली एनर्जाइज्ड, हाईली एक्साइटेड आयनाइज्ड गैस पार्टिकल्स, दैट इज इट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात कर लेते हैं। दिस इज कंसिडर्ड एज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इन 1920। इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, okay, come up with some calculations of Einstein, Albert Einstein, and both of them concluded a new state of matter, that was the Bose-Einstein condensate. Okay, हालांकि इसको प्रैक्टिकली बाद में 2001 में इरिक कॉर्नेल, Wolfgang Kettrel and Carl E. Wieman of USA received the Nobel Prize in Physics for achieving it practically. Okay, Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate बनता कैसे है? It is formed by cooling a gas at extremely low density. मतलब नॉर्मल एयर का लगभग 1/1000 एयर ले लीजिए डेंसिटी वाला और उसको सुपर कूल कर दीजिए। इन दैट कंडीशन approximately 1/100,000 the density of normal air and to super low temperature, okay, you will get the Bose-Einstein condensate. For more details about these things,
not from your syllabus point of view. You can study about more in these states from www.chem4kids.com. Okay, although from my side it is not required at all for you. Fine, this is end of the chapter. Now you students have to do NCERT questions, NCERT exemplar questions, and NCERT in text questions as a necessary part. अपार्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं. आपके फेयर नोटबुक्स में सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस प्रेजेंट होने चाहिए. एक्स्ट्रा नोट्स एनसीईआरटी, एस चांद, वीके गोयल, ओके, एसपी जौहर, वॉट एवर बुक यू पीपल वांट टू डू यू कैन डू. आपको जिस भी बुक के क्वेश्चन पूछने हैं आप मुझसे पूछिए, बट इन फेयर नोटबुक आपका एसपी जौहर सॉरी NCERT in text and NCERT questions होगा. That is it for today. Thank you class. Keep learning, keep studying.